Hello students. Now last time we have seen it flash drive. Just see it, that's flash drive, read only memory and random access memory. Now motherboard we are discussing. Motherboard is the most important board of computer. Backside ports are available in that computer. All the ports attach on the motherboard. If motherboard is not there, then no machine will work it, like computer, mobile, any device, because motherboard is the main wholesale part of that device or machine. Here also mentioned the motherboard is the main circuit inside a computer. So this thing is available. Now expansion card are that card which you can additionally add some device, or we can say, for example, if you want to add RAM, so we can additional RAM we can add it, like 4 GB RAM we are using, and if you want to add another GB, then that is called expansion card. That means another card attached, we can use it. Video card, network interface card, we can add it. Here we mention it. An expansion card is a circuit board that can be attached to a motherboard to add features such as video display, audio capability, or any other capability. Mention it. Even we can also add it sound card. Here mention it sound card. It converts audio signal from microphone, audio tape, or some other devices. So this is called expansion card. Means we can add video card, we can add network interface card, we can add sound card. Now storage device, again it is the most important device. Storage device, there are two types of storage. Previously we have discussed it. Number one is primary storage, number two is secondary storage, or same thing we can say two types of memory is there, primary memory and secondary memory. Primary storage are those storage which hold temporary data, like we can use it RAM and ROM. And secondary storage device, hard disk, floppy disk, DVD, CD, pen drive, memory card, these are secondary storage device. So floppy disk also is also there, hard disk also there. Here I mention is hard disk is a magnetic tape, usually main storage device. Floppy disk, again right now currently floppy disk is not using, but that was a secondary storage device which was previously used it. पहले यूज होती थी, आजकल यूज नहीं होती, क्योंकि 1.44 MB तो डेटा आता है पेन ड्राइव में, 1 GB तक डेटा आता है, 16 GB तक डेटा आता है. 1 GB से पेन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी, और 16, 32, 64 GB तक आ रही है. मेमोरी कार्ड भी ऐसी आ रही है. सो दिस थिंग आर अवेलेबल. CD basically used for compact disc, again secondary storage device, 700 MB up to 700 MB we can use it. DVD we can use it 8 GB data, and whatever CD or DVD you are using, you can use it that drive. So that is, I think, clear this thing. Now next is port and connection. I have already told you in case when I have explained it motherboard. जब मैंने आपको मदरबोर्ड एक्सप्लेन करा था तो मैंने बताया था कि पीछे जो मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं, वो पोर्ट से ही काम चलता है. तो उसमें कुछ पोर्ट USB पोर्ट होते हैं, कुछ सीरियल पोर्ट होते हैं, और कुछ पैरेलल पोर्ट होते हैं. अब पैरेलल पोर्ट जैसे आपका, मैं आपको समझाऊं पैरेलल पोर्ट. तो पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट में डिफरेंस ये है, सीरियल पोर्ट जो गोल पहले यूज होते थे, आजकल तो सारे जितने भी डिवाइसेस में USB पोर्ट आते हैं, पर पहले ऐसे गोल टाइप का डिवाइस होता था, वो सीरियल पोर्ट होता था. और पैरेलल पोर्ट जो होता है वो ये मॉनिटर का जो पोर्ट होता है वो इसमें यूज होता है. मैं आपको 1 मिनट आपको एक एग्जांपल भी इसमें बता देता हूँ. सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट का डिफरेंस. ये देखो सीरियल पोर्ट
ये पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट का मतलब यही है, ये देखो आप दिख रहा है, पैरेलल पोर्ट का मतलब यही है। यहाँ ये बड़ी स्क्रीन है, पैरेलली डॉटेड्स दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल पोर्ट है। और ये सीरियल पोर्ट है, जो छोटे हैं वो सीरियल, आप यहाँ भी देखोगे तो पैरेलल, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। तो पहले ये सीरियल पोर्ट माउस यूज होते थे, और जो मैं आपको गोल वाले बता रहा हूँ वो PS2 पोर्ट है। तो पैरेलल पोर्ट जो बड़े पोर्ट होते हैं बेसिकली, जैसे आपका मॉनिटर वगैरह अटैच होगा तो वो उसी से होगा अटैच। तो ये पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बारे में। फिर डिस्प्ले एडाप्टर। डिस्प्ले एडाप्टर मतलब एडाप्टर लगाओ तो मॉनिटर के साथ, जो मॉनिटर का पिन होती है वो उसके साथ एडाप्टर होता है। आजकल एडाप्टर तो सभी के साथ आ रहा है। फिर नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट बेसिकली नेटवर्क पोर्ट जो लैन वैन वैन, आप देखो एक छोटा सा डिवाइस होता है लैन डिवाइस, उसको लगा देते तो वो लैन पोर्ट कहलाता है। यूएसबी में बता चुका हूँ। फायर वार बेसिकली डिजिटल कैमरा वगैरह के हिसाब से यूज करते हैं वो। और पावर तो आप देख ही चुके हो। फिर ये कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कई चीजें देख ली। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ से, इसको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम। जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल का डायग्राम है ये। और ये अगर हमको समझ में आ गया तो कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि यही चीज 9th में है, यही चीज 10th में है, यही चीज आपकी 11th में भी आप इस चीज को पढ़ोगे। पर आपको बस क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है। तो जब आप इसको बहुत ज्यादा गहराई से देखोगे तो इसको बोला जाता है जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल। जॉन JOHN, जॉन, वॉन VON, वॉन, न्यूमैन NEUMANN, न्यूमैन मॉडल MODEL। क्योंकि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ था उस 1864, और जो कंप्यूटर के इन्वेंटर थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कॉन्सेप्ट अलग अलग दिए थे। और उसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल ने कंसेप्ट दिया था। इसमें बेसिकली क्या है, डेटा इनपुट जाता है, ये इनपुट इससे जाता है, इससे डेटा प्रोसेसिंग होती है, और इससे आपका आउटपुट आता है। तो इनपुट डेटा किससे जाएगा, लिखा ना इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट लिखा है मतलब ये आपका इनपुट जाएगा, ये इनपुट आपका जाएगा यहाँ से, इनपुट यूनिट से, और वो जाता है कीबोर्ड से या माउस से। कीबोर्ड, माउस, और आपकी और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है, लाइक स्कैनर है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, वेब कैमरा है, आपके बहुत सारे पोर्ट है, माइक है, इससे इनपुट। अच्छा, डेटा हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, डेटा हमेशा मेमोरी में जाता है। प्राइमरी जो डेटा है पहले सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, और वो प्राइमरी मेमोरी में ही जाएगा। यहाँ पे हालांकि मेमोरी यूनिट मेंशन है, तो सबसे पहले जो डेटा जाएगा वो मेमोरी यूनिट में मेंशन होके जाएगा। मेमोरी यूनिट मतलब या तो रैम होगी या रोम होगी। चूंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए डेटा सबसे पहले उसी में जाता है। और अगर डेटा हमने परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर दिया, तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो वो हमको परमानेंटली मिलने के चांस रहते हैं। बाय द वे आपने डेटा सेव नहीं करा तो डेटा रैम में गया और लाइट ऑफ हो गई, या कोई पावर सप्लाई ऑफ हो गया, या अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में फिर डेटा आपको नहीं मिलेगा, और उस केस में वो डेटा चले जाएगा। इसीलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला है, और इस मेमोरी को बोला है वोलेटाइल मेमोरी। तो आप इसको ध्यान से देखें 1-2 मिनट, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ किस किस यूनिट का क्या क्या फंक्शन है। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले डेटा जो जाता है इनपुट डिवाइस से मेमोरी यूनिट में जाता है, और वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में काम करता है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब डेटा अगर अर्थमेटिक डेटा से रिलेटेड है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो ALU यूनिट में जाएगा, अर्थमेटिक यूनिट से काम करेगा। मान लो अगर ये लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड है, लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है कंपेयर करना, दो या दो से अधिक चीजों को कंपेयर करना, तो वो लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड है तो वो लॉजिकली काम करेगा। तो यहाँ पर जब हम डेटा डालते हैं तो डेटा हमेशा मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट के बाद डेटा फिर जाएगा आपका, अगर अर्थमेटिक से रिलेटेड है तो अर्थमेटिक यूनिट के लिए जाएगा, और अगर आपका डेटा लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड है तो लॉजिकल मतलब कंपैरिजन करेगा दो या दो से अधिक चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहाँ पर जाएगा।
अब नेक्स्ट आती है बात कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मेन पर्पस क्या है, मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे नॉर्मली एक टीचर का रोल क्या रहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन क्लास, कि अगेन टीचिंग तो करना ही है और साथ में उस पर्टिकुलर क्लास को कंट्रोल भी करना। सो देयर आर टू टास्क, दो टास्क रहते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का टास्क भी यही है कि इनपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं वो चेक करेगा, आउटपुट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। तो ये सिग्नल जनरेट करता है, और सिग्नल जनरेट होते हैं इसका मतलब इनपुट प्रॉपर आ रहा है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, प्रोसेसिंग प्रॉपर आ रही है। आप देखो कंट्रोल यूनिट के आसपास जितनी भी, जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, 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 तो ये कंट्रोल यूनिट की ये सिग्नल जनरेट करता है, जिससे ये पता पड़ता है कि कंट्रोल यूनिट अपना काम कर रही है, और कंट्रोल यूनिट ये चेक कर रही है कि सारा प्रोसेसिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये पूरा जो पार्ट कहलाता है, ये पूरा जो पार्ट मैं अब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसमें, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कहलाता है। डेटा अगर बाय द वे आपने परमानेंटली सेव करा तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डेटा में यहाँ जाएगा, और उसके बाद अगर प्रोसेसिंग होती है और वो आउटपुट शो होता है, आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन शो जो होती है वो मॉनिटर पे हो सकती है, प्रिंटर पे हो सकती है, स्पीकर पे हो सकती है, या प्लॉटर पे हो सकती है, या वो हर वो डिवाइस जिस पे आउटपुट डिस्प्ले होता है उस पे वो हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम, और ये कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, और बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके काम होता है कि प्रोसेसर के अंदर यूनिट भी लगी होती है, बेसिकली ALU, और ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ नीचे लिखा भी है, जब प्रॉपर एरो दिया वो उसका मतलब है फ्लो ऑफ डेटा, और प्रॉपर डॉट डॉट दिया वो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये लिखा भी, द सीपीयू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। मैं अभी आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ को। इनसाइड सीपीयू कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज ए रिसिपिएंट एंड मैनेजर ऑफ ए कंपनी। अब कंट्रोल यूनिट तो मेन है, जो मैनेजर ऑफ द कंपनी का बोला मतलब कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ें देखेगी, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट रिसीव्स ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। जिस चीज़ को मैंने बताया उसी चीज़ को बताया गया है। लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज अकाउंटेंट ऑफ कंपनी। अकाउंटेंट ऑफ कंपनी मतलब डेटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी में जाने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि अकाउंटेंट मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन इसमें कर चुका हूँ। अब इसमें जो बताने लायक चीज़ है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो देखो इनपुट डिवाइस है माइक, स्कैनर, कैमरा, बारकोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। शुरू के 4 डिवाइस जो दिख रही है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 4 डिवाइस जो है दैट इज इनपुट डिवाइस। जैसे माइक बोला तो यूज टू टेक ऑडियो इनपुट, ऑडियो मतलब वही आप जो बोलेंगे वो चीज़ आएगी। सिंपल रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड नर्सरी राइम्स इन द सिस्टम, आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करना, जैसे मैं अभी आपको भेज रहा हूँ तो माइक के थ्रू भी आपको बोल रहा हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर स्कैनर, स्कैनर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊं तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है। स्कैनर आपने बहुत जगह देखा होगा, लाइक आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे आपने स्कैनर देखा होगा, वो स्कैन करते हैं, आपके बारकोड को रीड करते हैं। आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में भी वहां पे आपके बारकोड को रीड करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होती है। और सिंपल रिक्वायरमेंट टू स्कैन ए पिक्चर दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन एन असाइनमेंट, असाइनमेंट में इंक्लूड करना, या हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि स्कैन करके भेज दो। अच्छा, स्कैन और फोटो खींचने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बता दूं क्या। फोटो में क्या होता है वो खाली इमेज आके काम कर जाती है, स्कैनर में क्या होता है वो डेटा पूरा स्कैन करता है। स्कैन का मतलब होता है कॉपी करना, तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस स्कैनिंग कहलाती है। दूसरा फिर आता है कैमरा। अब कैमरे में ऐसा है, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, और वो इनपुट डिवाइस किसी भी इमेज को, वीडियो को लेने के काम आती है।
लिखा भी टू टेक पिक्चर्स ऑफ स्टूडेंट फॉर आइडेंटिटी कार्ड्स। फिर बारकोड रीडर यूज टू रीड बारकोड। बारकोड मतलब लाइनिंग्स, जो लाइनिंग्स आती रहती है वो बारकोड कहलाती है। ठीक है, वो लाइनिंग्स जो आती है वो आप मॉल में देखेंगे तो बारकोड ही रीड होता है वो। नहीं, टू रीड बारकोड्स प्रेजेंट ऑन द बुक्स बीइंग इशूड रिटर्न इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में, आपके मॉल में भी यूज होता है। फिर प्रिंटर यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर से प्रिंट होता है, आउटपुट डिवाइस से प्रिंट। अब वहां लिखा है टू प्रिंट एन असाइनमेंट ऑन पेपर। स्पीकर यूज्ड फॉर ऑडियो आउटपुट, तो वो ऑडियो आउटपुट आपको स्पीकर पे मिलता है, वीडियो आउटपुट तो नहीं मिलता है। राइम्स वाइम्स सुनने के काम के पर्पज से बताया है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी बता दिया, रीड ओनली मेमोरी बता दी, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ आपको। द मेमोरी यूनिट ऑफ द सीपीयू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रैम एंड अनदर वन इज रोम। रैम रोम के बारे में बता चुका हूँ। टू कीप the essential instruction written and stored by the manufacturing to load operating system and take care of basic input output operation, और also referred base bias। रोम को रोम बायस भी बोलते हैं। उसमें क्या इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फिटेड है, रिटर्न है और वो स्टोर है, तो वो तो ये चेक करता है कि भैया जो इंस्ट्रक्शन वो पढ़ रहा है वो रीड कर रहा है कि प्रॉपरली है कि नहीं। ये रोम का काम है और मैन्युफैक्चरिंग के समय फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। तो इसी को बोलते हैं रोम बायस। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। डेटा बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ये तो हमको चीज समझने वाली बात है। बाइनरी डिजिट होता है 0 एंड 1, तो 0 और 1 जो होता है वो कहलाता है बाइनरी डिजिट। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होती है 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 0 1 का कॉम्बिनेशन। बाकी ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से लिख के बता देता हूँ। वन बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, और बिट जो होता है वो 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है। या 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। फिर 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट। ये आपको याद होना चाहिए, जीवन भर याद रखने वाली बात है। अगेन यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। फिर 1, इसको मैं लिख भी देता हूँ, किलो बाइट। फिर 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। फिर 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। फिर 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट। इतनी डेटा स्टोर रखना है, ये टेराबाइट तक बता रखा है। वैसे अब आगे और भी बता रखा है, योटाबाइट और वो, तो एक बार आप इसको देख लें मैंने जो लिखा है। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि एक 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि मान लो कि मैंने बोला कि 1 पेटाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1024 और 1024 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 1 पेटाबाइट में आपको 1024 ये लाना है, तो इसका और इसका ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये कैसे काम करेगा। आप चाहे नोट डाउन ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको लगे आप ले लें। ये याद होना जरूरी है, ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली बातें हैं। बेटा के बाद योटा, हेक्सा, जेटा ये भी आई हैं। तो अब हम वापस उसी पे चलते हैं, हमारे उस पे ये टेराबाइट। अब आप आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब रैम एंड रोम कंस्टिट्यूट द प्राइमरी मेमोरी। मैं आपको बता चुका हूँ रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दिस डिवाइस 20 GB टू 2 टेराबाइट। अभी जो हार्ड डिस्क आ रही है वो 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, 10 टेराबाइट में ही आ रही है। परमानेंटली ऑन कंप्यूटर, ये परमानेंटली स्टोर करती है। हार्ड डिस्क is one of the most important secondary storage device which is used to store operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यूज होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क 750 MB की होती है, मैंने अभी बताई। डीवीडी जो है वो 4.5 GB की है और 8 GB तक भी आती है। ब्लू रे डिस्क 25 GB 50 GB की आती है। पेन ड्राइव 512 MB से लेके 32 GB बता रखा है, पर अब 64 GB और 64 GB और 128 GB की भी आ रही है। मेमोरी स्टिक 512 से लेके 32 GB की अब 64 GB भी आ रही है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। पोर्ट मैंने बता रखा है, USB PS2 पोर्ट, गोल वाला जो है PS2 पोर्ट है। अब ये पेन ड्राइव, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर फॉर कनेक्टिंग। अब यहाँ ये देखो, ये पूरा अच्छे से समझा रखा है, आप इसको ध्यान से देखो। USB पोर्ट किसको कहते हैं, VGA पोर्ट किसको कहते हैं, सीरियल पोर्ट किसको कहते हैं, पैरेलल पोर्ट किसको कहते हैं। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट थोड़े से एक जैसे रहते हैं, पर यह है कि सीरियल पोर्ट छोटा होता है, पैरेलल पोर्ट बड़ा होता है। पैरेलली वो चीज़ आती है। वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर जो है वीडियो मोड के लिए, वो वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर दे रखा है। फिर ये USB पोर्ट है। ये RJ45 NIC वाली, ये जो है नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ से इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हो। और ये ऑडियो जे के मतलब एक ऑडियो के लिए, एक वीडियो के लिए है, और एक दोनों के लिए, ऑडियो वीडियो लेफ्ट राइट के लिए। ये बेसिकली उस पर्पज से यूज होता है जब आपको ऑडियो वीडियो मतलब स्पीकर भी जोड़ना हो, स्पीकर पे आउटपुट लेना हो, तो आप देखना। फिर पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई इससे आता है। पावर सप्लाई मतलब ये बेसिकली CPU में जो पावर जाएगा वो इसी से जाएगा। तो आप देखो दो कॉर्ड होती है, एक यहाँ से आपके बोर्ड पे जाएगी, बोर्ड पे मतलब पावर सप्लाई जहाँ से हो रहा है, लाइट का कनेक्शन वहाँ जाएगी, एक कनेक्शन वहाँ जाएगा, और एक आपका मॉनिटर का कनेक्शन लाइट के वहीं जाएगा पावर सप्लाई के। तो ये दोनों कनेक्शन हो जाएंगे और दोनों वो हो जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों को एक जगह कनेक्शन लेके और सभी वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे रखा है। इसको पूरे को कैबिनेट बोला जाता है, ब्लैक कलर के। अब पोर्ट और केबल ये बता रखा है, ये USB पोर्ट है, ये फायरवायर पोर्ट केबल है। ये जो है ये उस प्रिंटर में लगती है, ये वाली जो केबल लगती है। ये तो एक USB पोर्ट है और ये प्रिंटर में लगती है, इसीलिए बोला फायरवायर पोर्ट केबल। ये मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ, ये प्रिंटर में लगती है। और ये जो है ये इथरनेट केबल है। ये आपकी जैसे ये वाला जो पार्ट है ये लगेगा आपके वो RJ45 में, ये वाला ये RJ45 में लगेगा। तो ये नेटवर्क केबल है, ये लिखा भी इथरनेट RJ45 पोर्ट एंड केबल। तो हर केबल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है और अच्छा है, ये बड़ा
प्रॉपरली मैनेज सिस्टम बता रखा है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। फायरवायर ई पोर्ट, पोर्ट मतलब वही जो बता रखे हैं, और मैंने बताया कि ये प्रिंटर का पोर्ट है, ये RJ45 का पोर्ट है। पिन स्टैंडर्ड भी दे रखे हैं। अब ये एक्सरसाइज है कि इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है, तो इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है आपका, माउस होता है, स्कैनर होता है, जॉयस्टिक होता है ना, ये सब आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है, माइक होता है। आउटपुट यूनिट कौन कौन से हैं, आउटपुट यूनिट कौन कौन से मैंने अभी आपको बता रखा, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है। 4 होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, और आप चाहो तो स्क्रीन को भी बोल सकते हो। फिर जॉब ऑफ ALU इनसाइड, ALU का जॉब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक से रिलेटेड आप परफॉर्म कर सकते हो, लॉजिकल यूनिट से भी रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हो। अब 4 यूनिट आपने बता रखी, इनपुट और 4 आउटपुट तो मैंने बता दी है चारों आपको दोनों केस में। फिर अब ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाली बात करें, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये भी, हालांकि अपने पास अभी टाइम है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर समझेंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड, टैबलेट, ये तो बेसिक बता रखे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। इनको आपको एक्सप्लेन करना तो मैं और आपको इसमें बता देता हूँ यहाँ पर, कि कंप्यूटर बेसिकली 4 टाइप के होते, 3 टाइप के होते हैं कंप्यूटर टाइप्स। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर, और आपका थर्ड आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो क्वांटिटी में काम करता है। जैसे मेजरमेंट में अपन कहीं किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं, या आप एयर प्रेशर से एयर भरा रहे हैं, तो जहां भी मेजरमेंट वाली चीज आती है दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमेशा कैलकुलेटिव टास्क करता है, हमेशा मेजरमेंट वाले टास्क करता है, इस चीज को नोट डाउन कर लें हम। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच only combine 0 and 1, whatever computer we are using that is called digital computer। जो हम यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, 0-1 के कॉम्बिनेशन में काम करता है, और ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड 0 and 1। तो 0-1 में बाइनरी डिजिट का भी अपन ने देखा ही उस चीज को एक्सप्लोर करके। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर में आपके 4 टाइप होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर, इनकी साइज थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो आपको एक ही पेज पे दिख जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये 4 होते हैं। अब ये 4 में भी क्या क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। इन 4 को बताने के पहले मैं हाइब्रिड बता देता हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल को दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं हॉस्पिटल में गए तो ईसीजी मशीन कंप्यूटर से अटैच है, तो ईसीजी मशीन एनालॉग हो गया, कंप्यूटर आपका बेसिक कंप्यूटर हो गया, दोनों का अटैच हो गया, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हुआ। यह हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हुआ।
तो इस चीज को देखने वाली बात ये है कि आप इसको ध्यान से देखें, समझें। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग मेजरमेंट के लिए काम करता है, डिजिटल कैलकुलेटिव टास्क करता है और डिजिट के फॉर्म में आउटपुट देता है। अब इसमें अपन आते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर भी एक तरह का कंप्यूटर ही है और हम जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसको आप डेस्कटॉप बोल दो, लैपटॉप बोल दो, पाम टॉप बोल दो, कोई भी टॉप बोल दो, कोई भी टेबलेट बोल दो, दे ऑल आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। कैलकुलेशन फास्ट करते हैं और नॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे घरों में यूज होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाते हैं। ये इसीलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। और मैंने आपको बताया इसके एग्जांपल है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, डेस्कटॉप है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो मूवेबल नहीं होता, लैपटॉप मूवेबल होता है, पोर्टेबल होता है। फिर मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होते हैं। नॉर्मली मिनी कंप्यूटर घर में नहीं होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बेसिस पे यूज नहीं होते हैं, कंपनीज में यूज होते हैं क्योंकि उनका मेजरमेंट फास्ट होता है और कैलकुलेशन फास्ट होता है और कंपेरेटिवली आउटपुट अच्छा देते हैं, इसीलिए मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं। हालांकि इनकी यूटिलिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का यूज कंपनीज में ही है। पर माइक्रो से फास्ट मिनी है और मिनी से फास्ट मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का तरीका पूरा अलग है। मेन फ्रेम, अगर आपने कभी सुना हो कि कोबोल एक लैंग्वेज थी, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम करते थे। अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे वर्किंग वो हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में कंपनी में यूज होते हैं। स्पीड फास्ट होती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर जैसे आप पोर्टेबल नहीं होते हैं, डेस्कटॉप जैसे कि आप इसको स्टोर कर सके। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होता है, स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम होता है। ये सारी चीज़ें आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम होती है। मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी दे दिया कि कोबोल बेस में जो मेन फ्रेम में काम होता था। और भी बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस है जिसमें मेन फ्रेम पे काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसपे आप वेदर जो होता है, वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर से ही होता है। तो और सुपर कंप्यूटर इंडिया में भी डेवलप हो चुका है, उसका नाम परम है। सुपर कंप्यूटर बहुत सारे डेवलप हुए हैं पर इंडिया में भी डेवलप हुआ है जिसका नाम परम कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से वेदर फोरकास्टिंग होती है, रिसर्च में होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्टोर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैलकुलेट होते हैं और काफ़ी सारे काम जो टिपिकल और टीडीएस हैं वो सुपर कंप्यूटर से ही होते हैं, जो 1 नैनोसेकंड के भी छोटे से पार्ट में ये काम करता है। और सुपर कंप्यूटर के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट भी मतलब फास्ट होती है, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए इसको और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे फास्टेस्ट दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है उसमें सुपर कंप्यूटर जो एक टाइप है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है और उसमें जो प्रोसेसिंग चलती है वो बहुत फास्ट चलती है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट चलता है और काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ है। मेनली मैंने आपको बताया रिसर्च में साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन हुआ, रिसर्च हुआ, आपका वेदर फोरकास्टिंग हुई, जितने भी टीडीएस जॉब है, टिपिकल जॉब है, कॉम्प्लेक्स जॉब है, वो भी सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही हम देखते हैं। तो हमने जो वहाँ पर देखे हैं, अगर हम यहाँ देखने वाली की बात करें तो यहाँ डेस्कटॉप, लैपटॉप और आपका दूसरे जो हैंडहेल्ड और टेबलेट, ये चारों जो हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जो नॉर्मली एक डेस्कटॉप मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सिस्टम यूनिट होती है, प्रिंटर होता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। नॉर्मली हमारे घरों में यही पीसीज यूज होते हैं, इन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है, इसीलिए मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन करे। लैपटॉप लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप में साइज वेरिएशन हो सकता है डेस्कटॉप से, पोर्टेबल होता है। डेस्कटॉप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, लैपटॉप भी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, पर अगर बैटरी आपकी चार्ज है तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चार्ज बैटरी पे काम कर सकता है। हाँ, बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पे उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब लैपटॉप कंप्यूटर आने के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं अपन हैंडल्ड कंप्यूटर। हैंडल्ड कंप्यूटर जस्ट लाइक अपने पाम टॉप जिस टाइप से है कि आपके मोबाइल से उसकी स्क्रीन बड़ी है और लैपटॉप से छोटी है, लिखा भी है
handheld computer are device for a specific everyday tasks such as managing personal data. These are smaller than laptop, जो लैपटॉप से छोटे हैं, and provide fewer features compared to desktop computer और लैपटॉप. तो थोड़े से फीचर्स कंपैरेटिवली कम मिलेंगे आपको. टेबलेट भी वैसे ही, ये फुल फंक्शनल कंप्यूटर है, ठीक वैसे ही का वैसे ही काम करता है. फिर आगे हम बात करें बिट बाइट, तो बिट मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट बता दी थी जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में आती है. बिट बता दिया, बाइट बता दिया, किलोबाइट बता दिया, मेगाबाइट बता दिया, गीगाबाइट बता दिया, टेराबाइट बता दिया. फिर अब परफॉर्मेंस पे बात आती है. लास्ट की चीजें चल रही है परफॉर्मेंस, सीपीयू स्पीड. सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू हमेशा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये लिखा भी है. द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब सीपीयू जो है सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है कंप्यूटर, जो बहुत तेज चलती है. तो इसमें भी ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे फास्टेस्ट, द सीपीयू स्पीड इज द रेट ऑफ विच द सीपीयू कैन परफॉर्म ए टास्क such as moving data to and from RAM or performing numerical calculation. फिर हार्ड डिस्क फैक्टर. हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है और कहीं भी. और इफ द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्राइवल इज फास्ट, डेटा रिट्राइवल की स्पीड अगर फास्ट मिलती है तो द कंप्यूटर टेक्स लेस टाइम. तो डेटा रिट्राइवल मतलब ये है कि डेटा उसको जितनी जल्दी मिलेगा उतना वो फास्ट काम करेगा. और हार्ड डिस्क जो काम करता है वो आरपीएम से करता है. आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट. तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी हार्ड डिस्क फास्ट होगी तो आपका काम होगा. रैम, द स्पीड ऑफ रिट्राइवल डेटा स्टोर्ड इन रैम इज वेरी फास्ट. रैम प्राइमरी मेमोरी है और बहुत फास्ट मेमोरी होती है, हालांकि सेकेंडरी स्टोरेज से भी फास्ट होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज मेजर डेटा स्टोर करती है और परमानेंट करती है. रैम जो स्टोर करती है वो टेम्परेरी स्टोर करती है. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. आगे बढ़े हम. अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है MS वर्ड, जो कि कॉमनली वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, आपको कोई चीज़ लिखना हो, लेटर लिखना हो, आपको कोई बुक लिखना हो, कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखना हो, तो वर्ड प्रोसेसिंग या पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो. किसी टेक्स्ट को लिखना हो, कॉम्बिनेशन लिखना हो, ग्राफिक्स लिखना हो, ब्रोशर बनाना हो, ग्रीटिंग कार्ड बनाना हो, मैगजीन बनाना हो, बुक बनाना हो, किसी रिपोर्ट को लिखना हो, टेबल बनाना हो, लेटर बनाना हो, एप्लीकेशन बनाना हो. ये सारी चीज़ों में आपका ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है. सॉरी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है. सेकंड आपका आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये. नॉर्मली क्या होता है पीपीटी जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो इसी में होता है. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एग्जांपल है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम. तो विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वैसे तो ये आप 3rd-4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. एक्सटेंशन .ppt होता है. किसी भी चीज को प्रेजेंटिंग करने के लिए सबसे अच्छा इजीएस्ट अप्रोच वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि नॉर्मली काफी लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट बात आती है आपकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की. स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक्सेल का प्रोग्राम. जब भी कोई कैलकुलेशन आपको करना हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को परफॉर्म करना हो, कोई न्यूमेरिक डेटा को परफॉर्म करना हो, कोई ग्राफ को परफॉर्म करना हो, कोई चार्ट को परफॉर्म करना हो, या किसी भी टाइप के चीज़ों को परफॉर्म करना हो, तो एक्सेल यूज़ होता है. बेसिकली एक्सेल में क्या होता है, सेल वैल्यूज होती हैं. सेल होती है जो रेक्टेंगुलर प्रोसेस है उसको सेल बोलते हैं. हॉरिजेंटल जो होती है उसको रो बोला जाता है. पूरी की पूरी लाइन को जो है वो रो बोला जाता है हॉरिजेंटली. वर्टिकली जो होता है वो कॉलम होता है. तो जब भी कोई कैलकुलेशन करना हो तो इसमें सेल, रो, कॉलम सभी का कॉम्बिनेशन होता है. मल्टीपल सेल होती है, मल्टीपल रो होती है, मल्टीपल कॉलम होते हैं. और टेबुलर का सबसे ज़्यादा यूज़ आज की तारीख में एक्सेल में ही है. इवन आप किसी पार्ट पे रिज्यूम भी एक्सेल में बना सकते हो. अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह से यूज़ करना चाहते हो. तो अच्छा, सेल वही कहलाती है जहाँ पर रो और कॉलम का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है. तो ये लिखा भी है, सेल
इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ रो और कॉलम मिलती है, बोलते हैं ना A4, तो A कॉलम है और 4 रो है, तो वो उसी को A4 बोला कि A4 सेल में लिखा है, इसका मतलब उसमें काम हो गया। लास्ट आपका है डेटाबेस प्रोग्राम है। डेटाबेस प्रोग्राम थोड़ा सा अलग टाइप से वैल्यू रहती है। MS एक्सेस इसका एग्जांपल है। डेटाबेस में क्या होता है, एक्सेल जैसे ही होता है लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें टेबल बनती है, टेबल बनने के साथ साथ उसकी डिटेल भी मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट, ये यू कैन क्रिएट डेटाबेस, डेटा स्टोर करना, तो डेटाबेस बनाना। तो MS एक्सेस जब हम पढ़ेंगे तो इसमें और आपको क्लैरिफाई होगा। और इसमें अब आपको कोई किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स पे भी लिख दें, और तो आप ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के भी आप एक्सेस कर सकते हैं और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें या ग्रुप में आप मैसेज कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा।